and welcome to EP classes for Biology, Chemistry and Medicine by Dr. Mir. This is lecture 1 of a series of lectures on Biology and Chemistry हमारे NEET UG के लिए, after which I'll post a detailed lecture series on Anatomy, Physiology and Biochemistry हमारे MBBS और NEET PG के लिए. So let's get started. Chapter 1, The Living World. Our NCERT emphasizes on the word living. So what is living? In order to better understand this, कुछ features, कुछ characteristics living organisms के हम study करेंगे. And while we are discussing these characteristics, we have to be cautious of whether these characteristics are exclusive to living organisms only, या बोल दो whether these characteristics define living organisms totally or not. So the characteristics are definite shape and size. All living organisms have a definite shape and size. और इस वजह से living organisms are morphous. मतलब they have a particular form. Say for example, all different animals and plants have a definite body form. Us humans, we have a definite form. We are morphous. And non-living matter is amorphous, formless. We see no definite form there. For example, mountains, rocks. Okay. अगला characteristic living organisms का organization. In living organisms, we see a proper organization of the constituents of the body. Say in multicellular organisms, the organization goes like organ systems are made of organs, organs consist of tissues, and tissues of cells. And cells constitute of different types of cellular organelles. This orderly arrangement of the body is organization, and it is due to this organization that a living being is called an organism. अगला characteristic living organisms का growth. Growth is a permanent and irreversible increase in size. ये तो हो गई definition growth की, size का increase होना. अब growth होती कैसे है? तो our NCERT says that growth is the combined effect of increase in number, और वो number increase कैसे होगा? Cell divisions की वजह से. And increase in mass. इन दोनों के combined effect से growth होगी. Let's first discuss growth due to increase in number या cell divisions. Say we talk of plants. Plants में cell divisions होते रहते हैं, मतलब number cells का बढ़ता रहता है और plant grow करेगा throughout its lifetime. However, in case of animals, bodily growth due to cell divisions is restricted to only a particular reference size till a particular age. उसके बाद ग्रोथ नहीं होगी. हाँ, सेल डिविजन्स होते रहेंगे, जैसे यूज्ड अप ब्लड सेल्स बनाने में, वॉर्न आउट स्किन सेल्स बनाने में, वुंड्स हील करने में. लेकिन इन डिविजन्स की वजह से कोई बॉडीली ग्रोथ नहीं होगी एनिमल की. ये तो हो गई बात प्लांट्स और एनिमल्स की. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में growth due to cell divisions या growth due to increase in number and reproduction are synonymous, या बोल दो ये एक ही बात है. growth और reproduction यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में
सिनोनिमस है, एक ही बात है। मान लो हमने कोई न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम लिया और इसमें कुछ सेल्स रखी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। कुछ टाइम बाद जब हम देखते हैं हमारे माइक्रोस्कोप से, विल फाइंड दैट इन आवर कल्चर मीडियम नंबर इंक्रीज हुआ है। इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नंबर इंक्रीज हुआ है। नंबर इंक्रीज हुआ है मतलब ग्रोथ हुई है। एंड हियर इन दिस केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नंबर इंक्रीज हुआ है तो रिप्रोडक्शन भी हुई है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिनोनिमस है। नाउ लेट्स टॉक ऑफ ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन मास। मान लो कोई एक पेरेंट सेल है और इससे 2 डॉटर सेल्स बनी। अब इस न्यूली फॉर्म्ड सेल के पास ऑप्शंस होते हैं कि वो फर्दर डिवाइड हो या डिफरेंशिएट होके कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल बने, जैसे नर्व सेल, मसल सेल एट्सेट्रा। लेकिन ये 2 ऑप्शंस डिसाइड करने से पहले सेल कुछ सब्सटेंशियल मास गेन करेगी और इस गेन ऑफ मास की वजह से सेल की या ओवरऑल ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी। तो सेल ग्रो करेगी, कुछ सब्सटेंशियल मास गेन करेगी पहले, डिवाइड या डिफरेंशिएट होने से पहले। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन मास। ये ऑप्शंस जो होते हैं एक नई सेल के पास कि वो फर्दर डिवाइड होगी या डिफरेंशिएट होगी, ये हम इन डिटेल पढ़ेंगे हमारे चैप्टर सेल साइकिल में। अभी ज़रा सा एक ब्रीफ प्रीव्यू देखते हैं। सो इफ़ आई ड्रॉ द सेल साइकिल में फेजेस होते हैं, जैसे एम फेज या माइटोटिक फेज, G1 फेज या गैप 1 फेज, एस फेज या सिंथेटिक फेज, G2 फेज या गैप 2 फेज। माइटोटिक फेज या एम फेज में हमारे पास है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और इस एम फेज में न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। और एम फेज के बाद आता है एक वेरी ब्रीफ फेज ऑफ सेल साइकिल कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, जहाँ साइटोप्लाज्म डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बनेंगी। G1 फेज या गैप 1 फेज में डॉटर सेल ग्रो करना स्टार्ट करेगी। क्यों ग्रो करेगी? क्योंकि इन दिस फेज न्यूक्लियोटाइड्स, ATP, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड एंड सेल ऑर्गेनेल्स like mitochondria multiply, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus are produced। तो इन चीज़ों से सेल ग्रो करना स्टार्ट करेगी। G1 के बाद आता है एस फेज या सिंथेटिक फेज, और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स बनेंगे। साथ ही में DNA की रेप्लिकेशन होगी, मतलब न्यू DNA विल बी फॉर्म्ड। मतलब अब सेल को डिवाइड होना ही पड़ेगा, वरना रेप्लिकेशन करके और DNA बनाने की ज़रूरत नहीं थी। एस फेज़ के बाद आता है G2 या गैप 2 फेज़। यहाँ भी फर्दर ग्रोथ होगी सेल की, यहाँ भी प्रोटीन्स बनेंगे और क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन होगी, मतलब सेल को प्रिपेयर करेंगे एम फेज़ के लिए, जहाँ न्यूक्लियर डिवीजन होगा। दिस वाज अ ब्रीफ आइडिया ऑफ सेल साइकिल। और हमें देखने थे ऑप्शंस एक न्यूली फॉर्म्ड सेल के कि वो कैसे डिसाइड करेगी कि उसे फर्दर डिवाइड या डिफरेंशिएट होना है। मान लो हमारे पास कोई एक सेल है और एम फेज एंड साइटोकाइनेसिस के बाद 2 डॉटर सेल्स बनी। ये डॉटर सेल्स एंटर करेंगी G1 फेज में।
जहाँ ये पहले मास गेन करेंगी, मतलब ग्रो करेंगी. Remember, this is what we were discussing actually. Growth due to increase in mass. और G1 में ही ऑप्शंस होते हैं सेल के पास, फर्दर डिवाइड या डिफरेंशिएट होने के. अगर सेल G1 से G0 में गई तो यूजुअली डिफरेंशिएट होगी, यूजुअली. और अगर G1 से S में गई तो डिवाइड होगी. तो अगर सेल G1 से G0 में गई तो यूजुअली डिफरेंशिएट होगी, और अगर G1 से S में गई तो डिवाइड होगी. एंड रिमेंबर, सेल्स जो G0 में जाती हैं वो सभी टोटली डिफरेंशिएट नहीं होती. कुछ सेल्स का फर्दर डिवीजन अरेस्ट हुआ होता है, लाइक आवर फाइब्रोब्लास्ट्स. व्हेन वी हैव अ वुंड, our body demands these fibroblasts to leave G0 and enter S phase so they can divide and begin the healing process. और कुछ सेल्स G0 में जाके टोटली डिफरेंशिएट होती हैं और कभी भी फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, जैसे नर्व सेल्स हमारी, skeletal muscle cells, mature WBCs, RBCs. These were some bits and pieces related to our cell cycle. In a nutshell, एक न्यूली फॉर्म्ड सेल के पास ऑप्शंस होते हैं कि वो फर्दर डिवाइड हो या डिफरेंशिएट हो, लेकिन ये ऑप्शंस डिसाइड करने से पहले सेल कुछ सब्सटेंशियल मास गेन करेगी, और इस गेन ऑफ मास की वजह से ग्रोथ होगी. एंड दिस इज ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन मास. Now, if we consider growth the outcome of increase in mass, then non-living objects भी grow करते हैं as they too show increase in body weight. For example, mountains, boulders, sand mounds increase in size, जो उन पे डिपोजिशंस होती रहती हैं उनकी वजह से. अब हम ये तो नहीं कह सकते कि माउंटेन्स भी लिविंग हैं. Therefore, growth alone cannot be considered as the only criteria defining living organisms. And therefore, we say growth is not an exclusive property of living beings. मतलब ये ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ ग्रो कर रही है तो वो लिविंग है. और ये भी ध्यान में रखना है कि ग्रोथ एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ के किसी न किसी स्टेज में ग्रोथ शो करेगा. बट अब क्योंकि नॉन लिविंग मैटर भी ग्रो करता है, सो वी से ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, अगला कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, रिप्रोडक्शन. A process in which an organism produces organisms, या offsprings, of its own kind. And reproduction can be sexual or asexual, which we'll discuss in our upcoming chapters. Okay. Today, we know for a fact that life comes from life only. मतलब only living beings can reproduce. Only living. And therefore, we could have easily said that reproduction is a defining characteristic of living. But here is the catch. If something shows reproduction, we say without doubt it is living. क्योंकि जो living है बस वही reproduce कर सकता है. और अब अगर हमारे पास कोई living being है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो reproduce भी करे. For example, sterile worker bees, mules, infertile human couples, they are all living but don't show reproduction. And therefore, we say reproduction also is not a defining criteria of living organisms. Okay.
अगला कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मेटाबॉलिज्म. All the chemical reactions occurring in living cells are collectively termed as metabolism. जितनी भी रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, दे आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज मेटाबॉलिज्म. ये रिएक्शंस बॉडी के बाहर भी हो सकती हैं अंडर फेवरेबल कंडीशंस, जिसे इन विट्रो कहते हैं. बट तब आप इन रिएक्शंस को मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म नहीं कह सकते. यानी लिविंग बॉडी का होना ज़रूरी है. लिविंग बॉडी है ओनली देन मेटाबॉलिज्म है. तो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग क्राइटेरिया हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. मतलब जिस चीज़ में मेटाबॉलिज्म है वो चीज़ लिविंग है. मेटाबॉलिज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू two categories, anabolism and catabolism. Anabolism. These are the biochemical reactions related to synthesis of complex substances from simple ones. जिसमें complex substances बनेंगी simpler ones से. And in terms of thermodynamics, फ्री एनर्जी जो है वो एक्यूमुलेट होगी या बिल्डअप होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. एंड प्लीज़ रिमेंबर, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो खाली हाइट की वजह से नहीं होती. पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम की डिपेंड करती है ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सिस्टम. मतलब एक सिस्टम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी आपस में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उस पे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी. तो एनाबॉलिज्म में सिंपलर सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनेंगे. फॉर एग्जांपल, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, व्हिच वी नो. ओके. Synthesis of lipids from fatty acids and alcohols, synthesis of proteins from amino acids, they are all anabolic reactions या anabolism का part है. Okay. इसके बाद अगली कैटेगरी मेटाबॉलिज्म की catabolism. These are the biochemical reactions related to breakdown of complex organic molecules into simpler ones, and during this process the energy that was stored as potential energy in these complex molecules is released as kinetic energy, which is in turn utilized by the organism for various activities. Okay. Catabolism की example जैसे respiration, और respiration में होता क्या है, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स जैसे ग्लूकोज, फैट्स, प्रोटीन्स, और एनर्जी रिलीज होती है. तो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग क्राइटेरिया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और एक डिफाइनिंग क्राइटेरिया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होम्योस्टैसिस. और होम्योस्टैसिस होता क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस विद इन सर्टन बाउंड्रीज अंडर एडवर्स कंडीशंस. एडवर्स कंडीशंस जैसे टेम्परेचर का चेंज होना, ह्यूमिडिटी का चेंज होना, एसिडिटी का चेंज होना, सैलिनिटी या सराउंडिंग्स में जो सॉल्ट कंटेंट है, सैलिनिटी का चेंज होना, ये सारे एडवर्स कंडीशंस हैं. और लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रॉपर्टी है कि वो अच्छी खासी हद तक इन चेंजेस को डॉज कर सकता है या कोप कर सकता है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज होम्योस्टैसिस. ये भी एक डिफाइनिंग क्राइटेरिया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. रिमेंबर, होम्योस्टैसिस. ओके. अगला डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, ये भी कॉन्शियसनेस या रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स and have an inherent ability to sense their surroundings or environment and can respond to environmental stimuli. Animals में तो ये responses हम quite easily देख सकते हैं. Plants भी respond करते हैं on stimulation.
से फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी चेंज हो गई, ये चेंज इन ह्यूमिडिटी स्टिमुलस है प्लांट के लिए, तो प्लांट अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा कि भाई स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन के लिए खोलने हैं या बंद रखने हैं, तो ये रेस्पॉन्स हो गया प्लांट का उस स्टिमुलस के लिए। इसी तरह फोटोट्रॉफिक कर्वेचर हम देखते हैं प्लांट्स में कि जहाँ लाइट होगी उसी तरफ बेंड होंगे प्लांट्स, यहाँ लाइट स्टिमुलस है और कर्वेचर प्लांट का रेस्पॉन्स। Likewise, we see folding of leaves in sensitive plants like Mimosa pudica due to external stimulus of touch. इस वजह से इस Mimosa pudica को shame plant भी कहते हैं, शर्मीला प्लांट है ये। तो यहाँ पे स्टिमुलस आपका टच हो गया और जो ये रिएक्शन देगा, जो रेस्पॉन्ड करेगा आपके स्टिमुलस को कि इसके जो लीव्स हैं ये अंदर की तरफ फोल्ड होंगे। ओके, मूविंग ऑन। अगला डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ये भी हीलिंग या रिपेयर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन हील देयर वुंड्स। जैसे एनिमल्स में प्लेटलेट्स और देयर सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स क्लॉट बनाएंगे, उसके बाद फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होकर रिपेयर करेंगे वुंड को। और प्लांट्स में वुंड की जगह पे कैम्बियम टिश्यू बनेगा विच विल डिवाइड, ये कैम्बियम टिश्यू डिवाइड होगा और डिफरेंशिएट होके हील करेगा वुंड को। पहले सेल्स बनेगी ढेर सारी कैम्बियम से और बिल्कुल उसी तरह की सेल्स बनेगी जिस जगह पे चोट लगी है, जिस जगह पे वुंड है, तो अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएट होंगी वो सेल्स। ओके, एक और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी removal of harmful metabolic wastes. All organisms throw these wastes out of their body in one way or another. Now again ये पढ़ना है चैप्टर एक्सक्रीशन में हमें इन डिटेल। ओके, मूविंग ऑन। अगला कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और ये भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। रिमेंबर दैट अडेप्टेशंस। Adaptations are useful, inheritable variations or changes that make an organism to adjust well and suited to its way of life. और ये changes आती कैसे हैं एक organism में? जेनेटिक रिकम्बिनेशन से, म्यूटेशंस से। जेनेटिक रिकम्बिनेशंस में होता क्या है ये हमें जेनेटिक्स में पढ़ना है, बट अभी एक प्रूफ देखते हैं कि जेनेटिक वेरिएशंस से या ये चेंजेस या वेरिएशंस कैसे आती हैं। मान लो हमारे पास डिप्लॉयड न्यूक्लियस है एक पेरेंट का, और इसमें होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं दैट आर n इन नंबर, और जोड़ के 2n यानी डिप्लॉयड। इस न्यूक्लियस को मियोसिस करके गमीट्स बनाने हैं, और वो गमीट्स दूसरे पेरेंट के गमीट्स से फर्टिलाइज होके ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। सिंपल। अब गमीट्स बनाने के लिए पहले इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस को मियोटिक डिवीजन करना होगा, और प्रोफेज 1 में होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की सिनेप्सिस होगी, मतलब दे विल कम क्लोज एंड मे ओवरलैप एट अ प्लेस कॉल्ड कियाज्मा। एंड ऑफ्टन टाइम्स कियाज्मा पे एक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है। कियाज्मा पे एक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा जिससे कियाज्मा की जगह से नीचे का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और यही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, ये एक्सचेंज होना जेनेटिक मटेरियल का। और हमारे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एक्सचेंज के बाद या क्रॉसिंग ओवर के बाद या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बाद कुछ ऐसे दिखेंगे। वॉच केयरफुली। और जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो 4 तरह के गमीट्स बनेंगे, 4 तरह के गमीट्स बनेंगे। वॉच वेरी केयरफुली। जिनमें ये दो जो हैं ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं, और ये दो जो हैं
दे आर सेम एज जो पेरेंट में थे. Here do not get confused. ये मान लो ये जो है और ये जो है ये भी एक ही क्रोमोसोम है और ये भी एक ही क्रोमोसोम है. जब आप काउंट करते हो क्रोमोसोम्स को देन वी ओनली काउंट दिस सेंट्रोमेयर्स. खाली आप सेंट्रोमेयर्स को काउंट करोगे. ओके. और अगर ये रिकॉम्बिनेंट या ये रिकॉम्बिनेंट गमीट फर्टिलाइज होगा दूसरे पेरेंट के गमीट से, तो द ऑफस्प्रिंग will have combination of traits that vary from those present in either parent. ठीक. And these variations lead to adaptations. यही variations की वजह से adaptations आती हैं. अगर ये variations useful variations हैं तो help करेंगी organism को adapt करने में changing environment के साथ. और अगर ये changes useful नहीं है तो ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट होगी. और यही नेचुरल सिलेक्शन है. एग्जाम्पल्स ऑफ अडाप्टेशंस के लिए हम देखते हैं जैसे फीडिंग हैबिट्स के हिसाब से बीक स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट बर्ड्स अडाप्ट हुई है विद टाइम. हमिंग बर्ड की बीक देखते हैं हम जो हेल्प करती है उसे नेक्टर सक करने में. पैरट की बीक देखते हैं जो उसे हेल्प करती है नट्स एंड फ्रूट्स को क्रश करने में. स्पैरोज की बीक ग्रेन्स खाने के लिए सही है. ओके. अगला डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एवोल्यूशन. Evolution is change in the characteristics of a species over several generations and relies on the process of natural selection. और एवोल्यूशन होता कैसे है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस जो हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ी बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विद टाइम. ओके. These were some characteristics of living organisms. तो इन characteristics को नज़र में रख के और NCERT defines living, according to which living organisms are self-replicating, evolving, and self-regulating interactive systems which respond to external stimuli. I hope ये definition हमें understand हो गई होगी. So we are done discussing living. And now let's see a few related questions. Stay involved and write your answers in comment section. Staying involved and participating helps a lot, even if you don't feel like it. Okay. So question number 1. Which one of the following aspects is an exclusive characteristic of living things? Option A. Isolated metabolic reactions occur in vitro. Increase in mass from inside only. Perception of events happening in the environment. Consciousness. Increase in mass by accumulation of material both on surface as well as internally. Question number 2. The maintenance of constant temperature inside the body is an example of homeostasis, negative feedback loop, both A and B, none of these. Question number 3. Which of the following is a defining characteristic of living organisms? Growth. Option B. Ability to make sound. Option C. Reproduction. Option D. Response to external stimuli. Okay, now we talk of diversity in the living world. Total number of all the different species present on earth is biodiversity. अब कहीं पे ये diversity कम होगी और कहीं पे ज़्यादा,
तो कहीं पे बहुत ज़्यादा, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स. Now, according to the current stats, 1.75 million living organisms are known to science. Out of these 1.75 million living organisms, 1.25 million are animals, 0.5 million are plants, और हर साल about 15,000 new organisms are discovered. एक एस्टिमेट के हिसाब से अर्थ पे 5 to 30 million species of living organisms के होने की पॉसिबिलिटी है. ये तो हो गए जो लिविंग हैं अभी. पास्ट में भी तो ऑर्गेनिजम्स थे जो एक्सटिंक्ट हो गए, और अब जिनके हम फॉसिल्स स्टडी करते हैं और कहते हैं कि जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं दे में आउट नंबर द लिविंग वंस बाय 50 to 100 टाइम्स. तो सारी मिला के सोचो कितनी स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बनती हैं. केमिस्ट्री में अभी हमारे पास कुछ 118 एलिमेंट्स हैं, एंड टू मेक आवर स्टडीज ईजी chemists had to classify them. अब अगर millions and millions of species हों तब भी तो उनकी proper classification बनती है to better access and understand them. तो इसलिए आ गई branches of science called taxonomy, systematics, जिन्हें डिस्कस करने से पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और थोड़ा सा नोमेनक्लेचर की. तब जाके हमें टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स अच्छे से समझ आ सकता है. तो क्लासिफिकेशन, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स या कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप्स या सिमिलैरिटीज एंड प्लेसिंग दिस ग्रुप्स इन हायरार्किकल ऑर्डर. मतलब ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना इनटू ग्रुप्स या कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज, रिलेशनशिप्स, और प्लेस करना इन ग्रुप्स को रैंकिंग के हिसाब से. तो वो हायरार्किकल ऑर्डर जिसे कहते हैं. अब ऑर्गेनिजम्स में ये रिलेशनशिप्स, ये सिमिलैरिटीज़ कैसे डिटेक्ट होंगी. पहले या बहुत पहले की अगर बात करें तो खाली एक दो सुपरफिशियल कैरेक्टर्स ऊपर ऊपर से देख के बोल देते थे कि हाँ जी इस कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स की रिलेशन है उस कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स से, जो कि कई बार गलत साबित होता था. इसको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं. देन एज द डिफरेंट डोमेन्स ऑफ बायोलॉजी लाइक बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी, ऑन्टोजेनी, इथोलॉजी, फाइलोजेनी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, जब इन सारे फील्ड्स ने प्रोग्रेस करना स्टार्ट किया तो टैक्सोनमिस्ट्स implemented them to better classify different species. बायोकेमिस्ट्री में हम देखते हैं जिसमें अब सेल में जो केमिकल्स हैं जैसे प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह उनकी स्टडी करते हैं. साइटोलॉजी में डिटेल स्टडी करते हैं सेल की, प्लस कैरियोटाइप यानी क्रोमोसोम्स का साइज़, शेप, टाइप और नंबर वगैरह स्टडी करते हैं. फाइलोजेनी में एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं. ऑन्टोजेनी में डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं. इथोलॉजी में बिहेवियर स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म का. ओके, तो जैसे जैसे ये ढेर सारी ब्रांचेस ने प्रोग्रेस करना स्टार्ट किया तो टैक्सोनमिस्ट्स ने इन ब्रांचेस की मदद से क्लासिफाई करना स्टार्ट किया, और ये क्लासिफिकेशन काफ़ी हद तक वैलिड थे. और इस क्लासिफिकेशन को नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं. क्लासिफिकेशन में अब हायरार्की जो है इन ग्रुप्स या कैटेगरीज की कुछ इस तरह से है. सबसे पहले सबसे सिंपल ग्रुप या कैटेगरी एक ऑर्गेनिज्म की उसकी स्पीसीज़ होती है. फिर उसके बाद की हायर कैटेगरी आती है जीनस, जिसमें क्लोजली रिलेटेड डिफरेंट स्पीसीज़ आती हैं, क्लोजली रिलेटेड. उसके बाद की हायर कैटेगरी फैमिली, जिसमें रिलेटेड जेनरा आते हैं. जेनरा इज़ द प्लूरल ऑफ जीनस. स्पीसीज़ का प्लूरल स्पीसीज़ ही होता है. ओके, और जीनस के बाद ढेर सारे सिमिलर जेनरा जब हम देखते हैं एक ग्रुप में तो दैट इज़ कॉल्ड फैमिली.
और ऐसी ढेर सारी सिमिलर फैमिलीज बनाती हैं ऑर्डर। इसी तरीके के बाद उसके बाद क्लास, और ढेर सारे क्लासेस, ढेर सारे रिलेटेड क्लासेस बनाते हैं फाइलम। फाइलम हम यूज़ करते हैं इन फाइलम वर्ड हम यूज़ करते हैं इन zoology यानी एनिमल्स के लिए, और प्लांट्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डिवीजन। और ढेर सारे फाइलम मिलके बनाते हैं कैटेगरी किंगडम। ओके। और जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, सिमिलैरिटीज़ या रिलेशन कम होती जाती है। ओके, ये मैंने आपको आइडिया दिया क्लासिफिकेशन का, जिसकी एग्जांपल्स कुछ देर में हम देखेंगे। अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। तो आइडेंटिफिकेशन इज़ फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हमने अभी ये थोड़ा आइडिया देखा क्लासिफिकेशन में, इसमें सही नाम और सही प्लेस क्या बनती है एक अननोन ऑर्गेनिज्म की, तो वो आइडेंटिफिकेशन है। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म हमें मिला तो उसको आइडेंटिफाई करना या उसकी शनाख्त करना, तब जाके तो हम उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जब हमें उसके बारे में आइडिया होगा, उसके बारे में अच्छी नॉलेज होगी। ओके, मान लो हमारे पास 3 डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, ए, बी और सी, जिनकी हमें पूरी डिटेल्ड नॉलेज है और जिनकी हमने क्लासिफिकेशन भी ऑलरेडी की हुई है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लास यूजिंग बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी, यानी वैलिड डिटेल्ड क्लासिफिकेशन। और अब हमें मिला एक ऑर्गेनिज्म से वाई। तो वाई को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसकी डिटेल्ड बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी वगैरह देखेंगे, जिससे ये पता चलेगी कि ए, बी और सी में से किसके ज़्यादा रिलेटेड है वाई। फिर अकॉर्डिंगली वाई को क्लासिफाई करेंगे। तो इस तरह से वाई आइडेंटिफाई हो गया। आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करती हैं हमें आइडेंटिफिकेशन कीज़ या बायोलॉजिकल कीज़, जो आगे हमें स्टडी करनी है। ओके, तो एक हल्का सा आइडिया देखते हैं पहले नॉमेनक्लेचर का। नॉमेनक्लेचर मतलब नाम देना, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं लिनेयस का बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो हम अभी कुछ देर में देखेंगे। ओके, अब हम आते हैं टैक्सोनॉमी पे। तो टैक्सोनॉमी डील्स विद principles and procedures of identification, nomenclature and classification of organisms. आइडेंटिफिकेशन भी हमने देखा अभी, nomenclature और क्लासिफिकेशन भी हमने अभी देखा कुछ देर पहले। तो इसके बाद सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में टैक्सोनॉमी प्लस कंपैरेटिव एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एट एवरी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। एक तो टैक्सोनॉमी प्लस कंपैरेटिव एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एट एवरी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन पे, जैसे आप जीनस देखें, फैमिली देखें, ऑर्डर देखें, क्लास देखें, हर एक लेवल पे हमें कंपैरेटिव एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखने हैं ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑब्जेक्ट्स की, जिनकी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। दैट इज़ सिस्टमैटिक्स। ओके, अब बात करते हैं हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की। डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट नाम होते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म के, विच गेट्स वेरी कन्फ्यूजिंग ऑफ्टन टाइम्स। इस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम देना पड़ा। इसकी शुरुआत की थी लिन्नेयस ने इन हिज बुक्स स्पीसीज प्लांटरम और स्पीसीज और सिस्टमा नेचुरी में, where he for the first time used binomial nomenclature। फिर उसके बाद 5 कोड्स वजूद में आए, जिनके फ्रेम किए हुए रूल्स के मुताबिक हर एक ऑर्गेनिज्म का नाम पड़ता है आजकल। ये 5 कोड्स हैं। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर zoological nomenclature,
ICBAC-N, International Code for Bacterial Nomenclature. ICVN, International Code for Viral Nomenclature. ICNCP, International Code for Nomenclature of Cultivated Plants. Now we talk of rules of binomial nomenclature. So rule number 1. Each organism is given only one name consisting of two words. Two words. इसीलिए तो binomial nomenclature. Generic and specific. For example, हमारा जो mango है इसका scientific नाम होगा Mangifera indica. Mangifera generic name and indica specific. Okay. Rule number 2. The generic name is written first and it begins with a capital letter. जैसे यहाँ पे हमने देखा, it begins with a capital letter. This is followed by specific name, which starts with a small alphabet, except when the word represents a person or place. Okay. Rule number 3. The specific name is often followed by the name of the discoverer, in full or in abbreviation. For example, Ficus bengalensis Linnaeus. ये डिस्कवरर का नाम इसके साथ में, या इन फुल और इन एब्रीविएशन. ओके. अभी आप बोलोगे ये तो 3 वर्ड्स हो गए, बट ये स्टिल बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में आता है. डिस्कवरर का नाम लास्ट में जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. Okay. Rule number 4. The date of the publication of the species name may also be added to the scientific name. जैसे for example, Homo sapiens Linnaeus 1758. 1758 में ये बुक्स लिखी थी Linnaeus ने, if you remember. उसी में मेंशन किया था Homo sapiens नाम इसका, उसी में पब्लिश हुई थी. तो ईयर भी कई दफ़ा आप साइंटिफिक नेम नाम के साथ देख सकते हो. Okay, rule number 5. If the same scientific name is to be written time and again, the name of the genus can be abbreviated. अगर कोई आर्टिकल हम लिख रहे हैं और किसी एक स्पीसीज़ का नाम, कोई एक साइंटिफिक नाम हमें बार बार लिखना पड़ रहा है, तो जो जीनस का नाम है, जैसे यहाँ पे फाइकस, इसको हम एब्रीविएट कर सकते हैं. एब्रीविएट करके हम ऐसे इसको लिख सकते हैं. ओके. रूल नंबर 6. द नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज because Latin is a dead language as it has fallen out of use as a method of communication, almost not spoken anymore, therefore no changes can occur. अब अगर वहीं पे बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, अगर शेक्सपियर जिसका होल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पे अपने ज़माने में सबसे अच्छा था विदाउट डाउट, आज जिंदा हो गया और कोई उससे बोल दे यो ब्रो दैट प्लेस इज़ लिट, दैट प्लेस इज़ बूजी, तो शायद उसे भी समझ ना आए, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज अभी भी इन यूज़ है. डेड लैंग्वेज नहीं है, इसलिए चेंजेस आती रहती हैं. ओके. रूल नंबर 7. These scientific names when typed are typed in italics and when handwritten are separately underlined. जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है. ओके. Rule number 8. The names of the categories above genus are not printed in italics. Genus के ऊपर की जो categories थी, जैसे family, class, order, तो उनको आप italics में print नहीं करेंगे when you are typing them. They are however started with a capital letter. For example, order primata, तो start आपको capital letter से करना है. या class में Malia, so you start with a capital letter
when you're writing them down. Okay. Rule number 9 of binomial nomenclature. When the name of a species is revised, the name of the original worker is retained but in parentheses. For example, Syzygium cumine. तो पहला जो इसका नाम था वो लिन्नेयस ने दिया था और अभी रिवाइज हुआ है जो किया है स्किल्स ने, इसलिए लिन्नेयस का नाम हम इन पैरेंथेसिस अभी भी इसके साथ जोड़ के रखते हैं. Syzygium cumine यानी जामुन. Now let's discuss our taxonomic categories. So like I was saying, in classification, the organisms that closely resemble one another are placed in a group. Then the groups which have similarities are combined together into larger groups, and these into still larger ones. These various grouping levels or ranks in classification are known as taxonomic categories. And the 7 obligate categories we have to study are species, genus, family, order, class, phylum या division और kingdom. ये तो हो गई categories और यहाँ taxon को समझना ज़रूरी हो जाता है. So a taxon represents real biological objects assigned to a category. एक taxonomic category के अंदर जो living object या objects हैं, they represent taxon of the category. Say for example, we know Mangifera indica, ये एक species है. मतलब in this case category species है और taxon जो इस कैटेगरी के अंदर है वो Mangifera indica है. तो Mangifera indica यहाँ पे taxon हो गया और species जो है वो कैटेगरी होगी. Likewise, जब हम बात करें क्लास एव्स की, ये हम स्टडी करेंगे इन किंगडम एनिमेलिया. तो किंगडम जब हम किंगडम एनिमेलिया पढ़ेंगे तो इस किंगडम का एक फाइलम है कॉर्डेटा. कॉर्डेटा फाइलम में हम देखेंगे 3 सब फाइला, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा में क्लासेस हैं जैसे क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस. कॉन्ड्रिक्थाइस में द कार्टिलिजिनस फिशेस हम पढ़ेंगे. क्लास ऑस्टिक्थाइस, इसमें हम बोनी फिशेस की स्टडी करेंगे. क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स और क्लास मेमेलिया, ये क्लासेस हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा के. और मान लो हम बात करें क्लास एव्स की, जिसमें हम एव्स या बर्ड्स की स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे कैटेगरी क्लास हो गई और इस क्लास में हम जिनकी स्टडी कर रहे हैं यानी एव्स की, वो यहाँ पे टैक्सॉन हो गया. और अगर बात करें एक बर्ड, एक ही बर्ड की, लाइक स्पैरो, तो स्पैरो वी नो इज अ स्पीशीज. तो इन दिस केस कैटेगरी स्पीशीज हो गई और टैक्सॉन जो है, जो इस कैटेगरी में है अभी, वो स्पैरो है. तो टैक्सॉन यहाँ पे स्पैरो हो गया और कैटेगरी स्पीशीज. नाउ लेट्स टॉक ऑफ दिस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन डिटेल. सबसे पहले बात करते हैं स्पीशीज की. A species is a group of organisms which resemble one another in all essential morphological and reproductive characters and are able to interbreed freely and produce fertile offsprings naturally, मतलब without human intervention. मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे को रिजेंबल करें,
रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स भी एक जैसे होंगे और फ्रीली इंटरब्रीड करेंगे, जिससे कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होगा। अब इंटरब्रीड तो हॉर्स और डोंकी भी करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी ने इंटरब्रीड किया, तो दे प्रोड्यूस अ म्यूल, बट दिस म्यूल इज सेक्सुअली इनफर्टाइल। बट हमारी कंडीशन थी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग की। तो हॉर्स एंड डोंकी दो अलग स्पीसीज हैं। और सुनो, इन प्रोकैरियोट्स एंड कुछ प्रोटिस्ट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है तो फर्टाइल इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग का तो सीन ही ख़त्म। अब कैसे डिटरमिन करोगे कि कोई दो ऑर्गेनिजम्स सेम स्पीसीज़ के हैं या अलग अलग स्पीसीज़ के? एट दैट टाइम अगेन what we consider are similarities depicted by morphology, anatomy, cytology, biochemistry वगैरह। अब जिन ऑर्गेनिजम्स की सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी वो सेम स्पीसीज़, और जिनकी अलग वो डिफरेंट स्पीसीज़। ओके, तो ये था अबाउट स्पीसीज़। नाउ वी टॉक ऑफ जीनस। इट इज़ द assemblage, a group of related species which resemble one another in certain characters. अब किसी जीनस में ज़रूरी नहीं कि ढेर सारी स्पीसीज़ हों। कुछ जेनरा ऐसे हैं जिनमें खाली एक स्पीसीज़ है। ऐसे जेनरा को, ऐसे जीनस को मोनोटिपिक जीनस कहते हैं। फॉर एग्जांपल होमो सेपियंस खाली एक स्पीसीज़ है इस जीनस में। ओके, और जिस जीनस में एक से ज़्यादा स्पीसीज़ हो वो पॉलीटिपिक जीनस है। जैसे जीनस पैंथेरा, जीनस सोलनम। तो एग्जांपल्स ऑफ जेनरा के लिए, जैसे जीनस पैंथेरा हम देखें तो इसमें स्पीसीज़ आती हैं, इसमें रिलेटेड स्पीसीज़ जो है वो है पैंथेरा लियो यानी लाइन, पैंथेरा टिग्रिस यानी टाइगर, पैंथेरा पार्डस यानी लेपर्ड। ये कुछ स्पीसीज़ हैं जो जीनस पैंथेरा में आती हैं। और एक जीनस हम देखें अगर कैट्स का, वो फेलिस है। इसमें रिलेटेड स्पीसीज़ आती हैं फेलिस डोमेस्टिका या कॉमन कैट, फेलिस काउस यानी जंगल कैट, फेलिस विवरीना यानी फिशिंग कैट। ये सारी स्पीसीज़ आती हैं, ये सारी रिलेटेड स्पीसीज़ आती हैं जीनस फेलिस में। इसके बाद अगली हायर कैटेगरी आती है फैमिली। तो फैमिली इज़ अ टैक्सोनोमिक कैटेगरी विच कंटेन्स वन और मोर रिलेटेड जेनरा। ढेर सारे जेनरा, ढेर सारे रिलेटेड जेनरा मिलके एक हायर कैटेगरी, एक हायर टैक्सोनोमिक कैटेगरी बनाते हैं फैमिली। जैसे से फॉर एग्जांपल हमने अभी कैट्स का एक जीनस देखा फेलिस, इसी तरह से जीनस पैंथेरा, ये दोनों जोड़ के बनाती हैं फैमिली फेलिडी। एक और एग्जांपल के लिए, जैसे दो और रिलेटेड जेनरा, जीनस कैनिस which includes dogs, wolves, jackal, and genus Vulpes, which includes foxes. They are related to each other, Canis and Vulpes. These are the two genera that are related to one another, क्योंकि
हम देखें अगर रिलेटेड कैरेक्टर्स की बात करें तो दोनों में पॉइंटेड स्नाउट्स होते हैं, जो नाक होती है वो पॉइंटेड होती है, एंड देयरफॉर दे आर केप्ट इन द सेम फैमिली कैनिडी। और अगर प्लांट्स की बात करें तो फैमिली की एग्जांपल है जैसे सोलिनेसी, इसमें रिलेटेड जेनरा हैं सोलिनम, दतूरा, निकोटियाना। ये रिलेटेड जेनरा बनाती हैं फैमिली सोलिनेसी। कुछ और एग्जांपल्स हैं प्लांट फैमिलीज़ की जैसे एस्टेरेसी, लिलिएसी एट्सेट्रा, जो हमें बॉटनी में इन डिटेल डिस्कस करनी है आगे। ओके, अब कुछ एक आध रिलेटेड फैमिलीज़ बनाएंगी नेक्स्ट हायर कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन कॉल्ड ऑर्डर। कुछ रिलेटेड फैमिलीज़ हम देखते हैं जैसे फैमिली फेलिडी, कैट्स, लायन, टाइगर की फैमिली। फैमिली कैनिडी, डॉग्स, वुल्व्स, फॉक्सेस की फैमिली। फैमिली अर्सिडी, बेयर्स की फैमिली। फैमिली हाइनिडी, हाइनास की फैमिली। इन फैमिलीज़ में रिलेटेड फीचर ये हैं कि दे आर ऑल कार्निवोरस animals and they have large canine teeth and therefore are included in the same order called carnivora. Carnivora. अब इसके बाद आती है कैटेगरी क्लास। रिलेटेड ऑर्डर से बनती है नेक्स्ट हायर कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन कॉल्ड क्लास। ऑर्डर एक हमने अभी देखा कार्निवोरा, कुछ ऐसे ही और रिलेटेड ऑर्डर्स जैसे ऑर्डर रोडेंशिया जिसमें रोडेंट्स आते हैं, ऑर्डर मार्सुपियाला जिसमें कैंगरूज वगैरह आते हैं, ऑर्डर सेटेशिया जिसमें वेल्स आती हैं, ऑर्डर प्राइमेटा जिसमें मंकीज, एप्स और मैन भी आता है। इन सारे ऑर्डर्स को जोड़ के बनती है क्लास मैमेलिया। रिलेटेड फीचर ये है इन सारे ऑर्डर्स का कि दे ऑल हैव मैमरी ग्लैंड्स या मिल्क ग्लैंड्स, इसीलिए इन सारे ऑर्डर्स को बन के जो क्लास बनती है दैट्स कॉल्ड मैमेलिया। ओके, अब रिलेटेड क्लासेस को जोड़ के मिलती है अगली कैटेगरी कॉल्ड फाइलम या डिवीजन। जैसे अभी हमने देखी क्लास में मेलिया, अब जोड़ दो इसके साथ और क्लासेस जैसे रेप्टिलिया, क्लास एम्फीबिया, क्लास एव्स, क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस, क्लास ऑस्टिक्थाइस, तो बनता है फाइलम कॉर्डेटा। इन सभी क्लासेस की स्टडी हमें करनी है किंगडम एनिमेलिया में। इन फाइला को जोड़ें, अब ढेर सारे फाइला को जोड़ें तो बनती है किंगडम, और किंगडम्स हमें स्टडी करनी है 5: किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। अब ये सब डिस्कस करके आई हाईली रेकमेंड कि आप अपनी एनसीईआरटी खोलें और इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिजम्स को देखें ध्यान से, और इनके जीनस, उनके जेनरा, इनकी फैमिलीज़, इनके ऑर्डर, इनके क्लासेस वगैरह को याद रखें एज दे माइट फ्रेम ए क्वेश्चन आउट ऑफ इट। And now we'll take a few MCQs. अब questions पढ़ें मेरे साथ and write down your answers. You can pause the video and solve for yourself. इन questions के answers मैंने वीडियो की एंड में दे रखे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 3 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके,
Which of the following is a category? Order, family, genus, all of these categories हमने देखी, species, genus, family, order वगैरह, तो उसको ध्यान में रख के अब आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को. Question number 5. Two plants can be conclusively said to belong to the same species if they have more than 90% similar genes, look similar and possess identical secondary metabolites, have same number of chromosomes, can reproduce freely with each other and form seeds. अब species की definition को revise करें and answer the question. Question number 6. Oryza sativa is the binomial name of the rice plant. The sativa stands for. Okay. Question number 7. Taxonomic group of any rank is. ये हमने डिस्कस किया हुआ है and I think you can answer this. Okay. Question number 8. As we go from species to kingdom in a taxonomic hierarchy, the number of common characteristics will decrease, will increase, remain same, may increase or decrease. एक हिंट देता हूँ मैं. सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स हम देखेंगे स्पीसीज में. Now we give it a try. Okay. Question number 9. Match the following and choose the correct option. अब ऑप्शंस ध्यान से देखें. ऐसे क्वेश्चंस अक्सर नीट में भी पूछे जाते हैं. ये चीज़ आप याद रखें कि प्लांट्स में जो फैमिलीज होती हैं दे एंड विद प्लांट्स में दे एंड विद ACEA, जैसे फाबेसी, एस्टेरेसी, सोलिनेसी. और एनिमल फैमिलीज का नाम एंड होता है IDAE से, जैसे फेलिडी में हमने देखा, कैनेडी में हमने देखा. ओके. इतना आप याद रखें तो काफ़ी है सब फैमिली के लिए. क्या सफिक्सेस हैं आप याद रखें तो अच्छी बात है, ना रखें तो ज़रूरत भी नहीं है. ओके. हिंट इसके लिए ये है कि सोलनम ट्यूबरोसम साइंटिफिक नाम है पोटैटो का. एंड वी नो पहला जो वर्ड होता है वो जीनस का होता है एंड बाकी आप खुद से देख लें. ओके. क्वेश्चन नंबर 10. Which one of the following organisms is scientifically correctly named, correctly printed, according to the international rules of nomenclature, and correctly described? Musca domestica, the common house lizard. Okay. Plasmodium falciparum, a protozoan pathogen causing the most serious type of malaria. ये हमें किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ना है इन डिटेल. प्लाज्मोडियम में टाइप्स हैं जैसे प्लाज्मोडियम falciparum, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाe, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. तो प्लाज्मोडियम falciparum जो है इससे बड़ा ही सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया होता है और ब्लड में अक्सर क्लॉट्स बनते हैं. और जब छोटी छोटी वेसल्स में ब्रेन के ये क्लॉट्स आते हैं तो वो बड़ा ही लीथल हो जाता है, बड़ा ही फेटल हो जाता है वो केस, जिसे सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं. तो प्लाज्मोडियम falciparum से जो मलेरिया होता है दैट इज़ मोर फेटल. ओके. ऑप्शन सी, फेलिस टिग्रिस, द इंडियन टाइगर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द टाइगर इज पैंथेरा टिग्रिस. ओके. ई कोलाई, full name Entamoeba coli. E. coli is Escherichia coli. Okay. Now I think it's easier. अब आंसर करें क्वेश्चन को. Question number 11. Nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature?
The first word in a biological name represents the genus name, and the second is a specific epithet. The names are written in Latin and are italicized when typed. When written by hand, the names are to be underlined. Biological names can be written in any language.